بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الثانی شریف کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ دوستو، آج ماہ ربیع الثانی شریف کی 25 تاریخ منگل کے دن جس گھر میں بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر لیا جائے تو اس گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور آسمان سے رزق کی بارش ہوگی۔ اللہ والو، آج چند منٹ نکال کر بتائے گئے طریقے سے لازمی یہ عمل کیجیے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا نایاب عمل ہے۔ اس عمل کو آج ماہ ربیع الثانی شریف 25 تاریخ کے دن خدا را کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ دوستو، یہ عمل وہ لوگ بھی کر لیں جن کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ کبھی گھر آ کر تنگ کرتے ہیں اور کبھی فون کر کے تنگ کرتے ہیں، تو کبھی میسج کر کے، کبھی گھر کے چکر لگا لگا کر۔ اگر آپ برے طریقے سے قرض میں ڈوب چکے ہیں تو ماہ ربیع الثانی شریف کی 25 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کا سب قرض ادا ہو جائے گا۔ دوستو، اس وظیفے کو پڑھ کر کئی لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے اور اپنی قسمت کو چمکایا ہے اور بند نصیب کو کھولا ہے۔ تمام رشتے، رکاوٹیں، بندشیں ختم کی ہیں۔ اللہ والو، آپ بھی اگر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کھولنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غربت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے اور سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو دوستو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پھر جو تماشا ہوگا وہ تماشا ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والو، وظائف اور اعمال کے ساتھ ساتھ نماز کی، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی بھی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے اہم ترین چیز نماز، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں، ویلے دیاں نمازاں تک ویلے دیاں ٹکرا، یعنی نماز وہ ہے جو وقت پر ادا کی جائے، وہ کسی حال میں معاف نہیں۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے۔ نماز پڑھنے والا محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز دعا اور روزی میں برکت ہے۔ نماز حوروں کا حق مہر ہے۔ نماز نمازی کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ نماز نمازی کے لیے سر کا تاج اور بدن کا لباس ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، آئیے آج کے اس عمل کی طرف۔ آج کا جو عمل ہے جس میں ایک کلمہ شریف پڑھا جائے گا، اس کی بڑی برکات ہیں، اس کی بڑی رحمتیں ہیں۔ آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیے اور پھر میسج کر کے، کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے کہ اللہ نے بھی ہماری تقدیر کو بدل دیا ہے۔ ہمارا بال بال جو قرضے میں ڈوبا ہوا تھا
अल्लाह ने रिहाई अता फरमा दी है, कर्ज़े ख़त्म फरमा दिए हैं, घर में खैर व बरकतें आ गई हैं। वो इस्लामी माएँ और बहनें बेटियाँ जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, वो भी यह अमल खुले दिल से और कामिल यकीन के साथ कर सकती हैं, बशर्ते कि कामिल यकीन हो, नमाज की पाबंदी हो, अरकान इस्लाम का ख्याल रखा जाए, झूठ, बिदात, ग़ीबत, चुगलखोरी से परहेज़ की जाए। जितना ही हम अपने आप को पाक और साफ़ रखेंगे, हमारे अमाल में उतना निखार आएगा, दुआओं में कामयाबी के उतने आसार पैदा होंगे। इसलिए दोस्तों, हमें इन चीज़ों के ऊपर भी अमाल के साथ साथ तवज्जो देनी चाहिए। और वो माँ बाप जो औलाद की वजह से परेशान हैं, वो भी ये अमल करके अपनी औलाद को फरमा बरदार बना सकते हैं, या औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, यह अमल करके उनके लिए अच्छे और मुनासिब रिश्तों को आसानी से तलाश कर सकते हैं। ये मुबारक अमल माँ, बहन, बेटी, बुज़ुर्ग, बच्चे सब कर सकते हैं। आप ये अमल किसी भी वक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। अमल का जो तरीक़ाकार है कि अमल आप ज़ुहर के बाद करें, असर के बाद करें, इशा के बाद करें, मगरिब के बाद करें, जब भी आपको टाइम मिले फ़ारग वक्त में ये अमल कर सकते हैं, लेकिन करना लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करें, कामयाबी वाली ज़िंदगी, आसानी वाली ज़िंदगी, खुशियों वाली ज़िंदगी हम गुजारें, तो इंशाअल्लाह आप ये अमल कीजिएगा। इस अमल की मुकम्मल इजाज़त के लिए एक मरतबा सवाब की नीयत से आपने कमेंट सेक्शन के अंदर सुबहान अल्लाह लिख देना है, फिर यह अमल कर सकते हैं। अमल का तरीक़ाकार जो इंसान बताए गए तरीके से करेगा वो कामयाब होगा। अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ ले ली, दो चीज़ें ले लियाँ, या अपनी मर्ज़ी से कोई वजीफ़ा कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमल वो है जो किसी के बताए गए तरीके से किया जाए, पाबंदी से किया जाए, किसी की इजाज़त से किया जाए। तो आपने दुरूद शरीफ से इस अमल का आगाज़ करना है। तो एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी जो अभी पढ़ा है वो आप पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद जो पढ़ा जाता है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या जो भी आपको आता है वो 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपका जो अमल होगा, सबसे पहले अमल करने से पहले आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। हर आदमी का अपना अपना मकसद है, अपनी अपनी हाजत है, उसी हाजत और मकसद के मुताबिक आप नियत कर लें। किसी को ज़ाती घर की ज़रूरत है, किराए के मकानों में रह के तंग आ गए हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। रिज़्क़ के लिए करना चाहते हैं तो आप उस रिज़्क़ की वसात के लिए, खैर व बरकत के लिए आप ये नियत कर सकते हैं। आप रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उसमें आसानी कर चाहते हैं तो रिश्तों की नियत कर लीजिएगा, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता फरमा देगा। और अगर कोई औलाद को बाहर भेजना चाहता है वीज़ों के लिए या टिकट के लिए या किसी और मामले के लिए परेशान है, तो वो वाली नियत कर सकता है। अगर कोई कारोबार की वजह से है, परेशान है, मामलात नहीं चल रहे, या कोई दुकान की वजह से है, दुकान है, ग्राहक नहीं है, तो वो भी उसी नियत को सामने रख के अमल कर सकता है। आपका जो पहला अमल आज का होगा, नियत करने के बाद एक मरतबा आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ये अमल का आगाज़ करना है। अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों से आपने इस अमल का आगाज़ करना है। वो 2 नाम हैं, या लतीफ़ु या ख़बीरु, या लतीफ़ु या ख़बीरु, या लतीफ़ु या ख़बीरु। ये 2 नाम हैं, इनको एक शुमार करके पढ़ना है, दोनों को मिला के एक शुमार करना है। 41 मरतबा आपने पढ़ना है। याद रखिए, जो तरतीब है उसे जहन रखा जाए, और जो तादाद बताई जाए उसको भी जहन में रखा जाए। हो सके तो आप किसी डायरी वगैरह में लिख लिया करें, ताकि या कागज़ में, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। आप अगर 41 मरतबा लिखा है तो आप ये नहीं है कि उसको 50 मरतबा पढ़ दें, या अगर 41 मरतबा लिखा है तो आप ये नहीं कि 33 मरतबा पढ़ दें। जो तादाद बताई जाए उसी के मुताबिक आप पढ़ेंगे। 41 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक दुआ है, बहुत ही
ताकतवर दुआ है, तेज़ तरीन दुआ है। बहुत जल्द जो इंसान ये पढ़ता है दुआ, उसके जो अमाल होते हैं, जो उसकी मुरादें होती हैं, बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। वो दुआ है या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब। आपने इस दुआ को 21 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको मुश्किल लग रही है, पहले तो आप अमाल करते रहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि काफ़ी अमाल में हम बताते रहते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई और अपनी मर्ज़ी का वजीफ़ा चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल अब्दुल अज़ीज़ तौसीफ़ी का विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह काफ़ी सारे वज़ाइफ आपको मिल जाएंगे आपकी पसंद के मुताबिक। आप जो भी करना चाहें वहाँ से देख के आप अमल कर सकते हैं। बहरकैफ़ या मुसब्बिबुल अस्बाब, इसे आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद जिस कलमे का मैंने ज़िक्र किया है वो कलमा पहले कलमे शरीफ का ज़िक्र है। अव्वल कलमे का वो आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे आपने 33 मरतबा 33 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने सूरत कुरैश एक मरतबा मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने वजीफ़े में पढ़नी है। अगर ज़बानी आती है तो ज़बानी आप पढ़ लें, अगर नहीं आती तो कुरान मजीद का बंदोबस्त आप पहले कर लें। वजीफ़े के दौरान आपने नहीं उठना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। इस मुबारक सूरत को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो आपने अव्वल में पढ़ा होगा। जो भी आपने पढ़ा है तो वही दुरूद शरीफ आपने आखिर में भी 3 मरतबा पढ़ना है। आज का ये अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन आपने इस अमल के बाद अपने मकसद और हाजत के लिए दुआ ज़रूर करनी, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजात और ज़रूरियात को सुन के मालिक कायनात आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का बंदोबस्त फरमा दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको इसकी खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।